हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे, हम जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन है, अब वो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो 10% का था। और अगर आपको अभी एनरोल करना है तो आप ये सिंपल यूज कोड कर सकते हैं, जो है SIMPLEYT। तो आप ये सिंपल कोड अप्लाई कर सकते हो और आपको 10% ऑफ मिलेगा। उसके बाद जो है वो प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो प्लीज आपको ये तुरंत फायदा उठाना चाहिए, ये जो डिस्काउंट मिल रहा है। Unacademy Aspire आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स अंडर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स ऑफ 2020 of paper 1 JS, and it will be conducted on every 10th and 25th of every month, and they will provide you with the exciting prizes and scholarship for top 50 rankers. And this was conducted on 10th October at 10 a.m. sharp. UPSC CSE complete batch preparation courses has already started from 5th October 2020. We have 3 complete batch preparation courses. The first one is in bilingual, second one is in Hindi, and the third one is in English. So the first is bilingual, in which the medium of instruction is in Hindi and English both. And in whichever language you're comfortable in, you can enroll for that batch course. So this one subscription has like unlimited benefits, because you can learn from your home, you have unlimited access to all courses, top educators, full syllabus coverage, double doubt clearing session, live test series, study material will be given to you in form of PDF format, answer writing session, and this will be done under a mentor and guidance. This is also like a one-stop solution for your complete UPSC CSE preparation, because we have structured batches with top educators, batches in Hindi, English bilingual, late night as well as 2-year batches, full 100% syllabus coverage, vast range of optional, prelims and main test series. We had double doubt clearing session, daily current affair practices, and answer and essay writing also. Practice will be also done, and along with that we'll also give you performance also, so that you can know about your performance on the test. Then we'll prepare you for the interview also, so this is going to help you in the long term. So if you subscribe now, you will get 10% off. You just need to simply apply this code, and then you will get 10% subscription. Unacademy's Champion Conclave with a power pack session for the toppers of UPSC CSE 2019. This conclave was a must attend for every UPSC CSE aspirant, and it succeeded in the country's most coveted exam, because it had with the free to attend conclave, and it dedicated a day to learn about the preparation journey of 2019 toppers and get tips and tricks from the one who actually cracked it. So this really helped a lot of students to understand about their weaknesses and apply those tips and tricks in their strategy also. And we had 14 toppers, 10 educators, and 14 talks and discussion. T20 daily current affair test series was completely free in this package, and it will be given to you in daily 7:30, because it consists of 20 questions for 20 minutes, and it will be for 40 marks, and we'll provide you with the test analysis also after you have finished your exam. So if you really like our channel, then please subscribe and join on YouTube, Telegram, and Facebook. So let's start about John Locke. As we all know that John Locke is a very recognized persona in the history of political philosophy, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस ऑफ एक्सपोजिशन और जो उनका स्केल ऑफ स्कॉलरली एक्टिविटी है, उनका बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस हुआ है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट में. अब जॉन लॉक थे, वो इंग्लिश फिलोसोफर और फिजिशियन थे, जो जनरली हम रिगार्ड करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा द मोस्ट पर्सुएसिव ऑफ एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल थे, और उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म भी, because it can also said that liberalism as a political thought were basically initiated by John Locke. No other political thinker or influenced the political theorizing on 2 different countries in 2 different continents as John Locke did. He was controlling the spiritual preceders of 18th century enlightenment, particularly for the philosopher of Rousseau and Voltaire also, and he was accredited with the originator of modern empirism, with Hume, with David Hume, J.S. Mill, Russell, and as his exponents.
So he was also giving a equally important to the social contract, and he was greatly impacted by the development of this epistemology and the political thinking. So basically his writings with Voltaire and Rousseau and many other Scottish like enlightenment thinkers, as well as the American insurgents, basically at contribution to the medical republicanism and the liberal theory was also like echoed in the United States of Declaration of Independence. So Locke, as we all know, was anticipated with a deep-seated conception of the political philosophy. So he actually he believed in the principle of his own self-ownership and the corollary of the right to own property. और इसके बेसिस पे उन्होंने बहुत फेमस असर्शन दिया है कि मैन अपना खुद का ओनरशिप अर्न करता है ओवर अ रिसोर्स एंड व्हेन ही मिक्सेस हिज लेबर विद इट. अब वो आर्ग्यू ये करते हैं जो गवर्नमेंट, उनके पास गवर्नमेंट भी लिमिटेड होनी चाहिए कि वो सिक्योरिंग कर सके जो लाइफ और प्रॉपर्टी है सब सिटीजन्स की, और इस वजह से ये नेसेसरी है क्योंकि जो आइडल अनार्की स्टेट है नेचर का. अब यहाँ पे और भी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है और का प्रोटेक्शन होनी चाहिए वो जो ऑफ मिनिमल स्टेट की. अब जो लॉक है वो का एक रिनाउंड है कि उनके राइटिंग्स के लिए ऑन टॉलरेशन है, जिसमें से वो अडॉप्ट करते हैं द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द रिलीजन, और वो बहुत फोर्सफुल क्रिटिसिज्म देते हैं जितने भी हेरिडिटरी मोनार्की होते हैं और जो पेट्रियार्कलिज्म होते हैं. अब हम देखते हैं कि उनके डेथ के बाद जिनके जितने भी मेच्योर पॉलिटिकल फिलोसफी हमने सपोर्ट लिया है वो हमने ब्रिटिश विंग पार्टी से लिया, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं. और ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, जो डेवलपमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड चर्च एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इन्हें ह्यूमन राइट्स को भी राइज दिया था जो 20th सेंचुरी में हुए थे. अब जॉन लॉक को हम आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि जो एक्सरसाइज करते एक डीप इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल फिलोसफी में, और स्पेशली उनका मॉडर्न लिबरलिज्म में है इम्पोर्टेंस ज़्यादा. अब इसमें हम देखते हैं जो लॉक ने लॉन्च करा था लिबरलिज्म में, क्या उनने कैसे करा था, बाय मॉडरेटिंग जो हॉब्स उनका जो एब्सोल्यूटिज्म था, और उन्हें सेपरेट करा था मोनार्कीज को स्टेट और चर्च में. तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे वॉल्टेयर पे जो उन्हें बनाया, जो उन्हें बोलते थे ली सेज लॉक, एंड उनके आर्ग्यूमेंट्स जो थी वो लिबर्टी के बारे में थी, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिनको उन्होंने लेटर इन्फ्लुएंस करा था वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन, थॉमस जेफरसन, और जितने भी फाउंडिंग फादर्स रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. और जो लॉक के जो इन्फ्लुएंस था वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड था इन द रिलीम ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, बिकॉज लॉक ने एक्चुअली रीडिफाइन करा था सब्जेक्टिविटी को और सेल्फ को, और इंटेलेक्चुअल जितने हिस्टोरियंस थे, और उससे जैसे चार्ल्स टेलर्स और इन सब ने भी आर्ग्यू किया कि लॉक का जो एन एसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग था, उन्हें ये मार्क करा था कमेंसमेंट ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ द सेल्फ. अब हम आते हैं रोल क्या रहा है मॉरल गवर्नमेंट का, ठीक है, मॉरल रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो इसमें लॉक ने बहुत क्लियरली स्टेट करा था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एक एक्चुअली नेचुरल पावर है एक मैन की, जो कोऑपरेटली उन्हें गिव अप करी अपने हैंड में जो डेजिग्नेटेड बॉडी है. अब इनने ये सेटिंग अप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट रही है, और जो लॉ कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि ये जो ओरिजिनल और सोशल और पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट है. अब जो कम्युनिटी जो सरेंडर करती है सम डिग्री ऑफ नेचुरल राइट्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये एक्चुअली which is actually for the better able to protect the rights of those than the men could alone. So because now the government actually exists on specially for the welfare of the community, and any other government that breaks the compact and should be also substituted also. So now we can see over here the community has a proper moral obligation to appeal against, otherwise we can say replace any other government that actually forgets to exist only for the benefit of people. So Locke also realized that it is very important to examine all the public institutions. So he was actually very clear about the function which were legitimate and what are the areas of life where it was inappropriate for these institutions to participate or exert any influence over there. और उन्हें ये भी बिलीव थे कि जितने भी पावर थे जो डिटरमाइन कर रहे थे प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट का, तो उन्हें अलाउ करना चाहिए ह्यूमंस को क्या ये फ्लरिश कर सके इंडिविजुअल्स और एज सोसाइटी की बोथ मटीरियली और स्पिरिचुअली. और जो गॉड ने उन्हें पावर दी है एबिलिटी ऑफ रीजन की और जो फ्रीडम की वो एक्चुअली प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड हो. गवर्नमेंट जो उन्हें प्रोवाइड करता है ह्यूमन अमाउंट्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ डिवाइन पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी.
अब हम यहाँ देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो एक्चुअली मॉरल ऑर्डर है नेचुरल लॉ का परमानेंट है और सेल्फ परपेचुएटिंग है, और गवर्नमेंट के ओनली फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं मॉरल ऑर्डर में। अब हम आते हैं इनका एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज में। अब जो लॉक का है जो ऑल नॉलेज वो एक्चुअली आती है एक्सक्लूसिवनेस में थ्रू उनके एक्सपीरियंस के, और जो लॉक की थ्योरी ऑफ माइंड है वो एक्चुअली मेंशन किया गया है कि वो बेसिस है मॉडर्न ह्यूमन आइडियाज ऑफ आइडेंटिटी का, और जो सेल्फ फिगरिंग कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क दैट वाज लेटर बाय द फिलोसोफर्स ऑफ ह्यूम, रूसो एंड कैंट. So Locke was also like the first to define the self through continuity of the consciousness. Now he assumes that at the birth the mind was also like a blank slate or like a tabular rasa, because the conflicting of Cartesian philosophy that was based on the pre-existing concept. So he sustained that the people are born without the innate ideas, and the knowledge is obviously determined by the experience they are getting from their sense perception. तो ने ये आर्ग्यू करा जो ह्यूमंस फील करते हैं अपने आइडिया को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वर्ल्ड फील करते हैं जो उनके 5 सेंसेस उन्हें देते हैं. अब जो लॉग ने डिस्क्राइब करा है नॉलेज वो एक्चुअली कनेक्शन और अग्रीमेंट के थ्रू, और ये डिसएग्रीमेंट और डिपेंडेंसी ऑफ आइडियाज ऑफ ह्यूमन फॉर्म थे. और और हम देखते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन को इंडिकेट करता है उनके नॉलेज में, एंड इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ह्यूमन आइडियाज. अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी नॉलेज है वो एक्चुअली काफ़ी नैरो हो जाती है, और यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन है वो इम्प्लाई करते हैं कि जो कनेक्शन है बिटवीन द मोस्ट सिंपल ह्यूमन आइडियाज ऑल्सो आर वेरी अननोन टू एवरीवन. अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आइडियाज वो लिमिटेड होते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, और उन्हें हम क्या पॉसिबली एक्सपीरियंस करते हैं जो एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में हमारी नॉलेज है जो एक्चुअली फर्दर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं. Nevertheless, we can also see that the Locke also like proclaim that though our knowledge is necessarily limited in the ways we can still be certain of the things. We can talk about, for example, we have an intuitive or immediate knowledge of our own existence, and even we are unaware of some metaphysical essence of our soul. So we also have like a demonstrative knowledge of God's existence. True, though our understanding cannot just be fully comprehended on who or what he is. So we know other things through our sensation, and we know that our ideas correspond to the external realities, because the mind cannot invent such things without experience. Now let's talk about the state of nature. So Locke ने begin करिए कि अपनी develop कराए जो idea of equality है human beings का, कि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ नेचर है और उनका जो नेचुरल राइट है लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे, वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन दी गई इंडिविजुअल की वो डेवलप होता है नोशंस ऑफ कम्युनिटी में, और फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी. अब लॉक जो कहता है कि गवर्नमेंट जिस बेसिस पे बनती है वो कंसेंट ऑफ पीपल पे होती है, और लेजिटिमेट पावर होती है वो लिमिटेड होती है, और ये सेपरेट होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड होती है सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू. अब लॉक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता है स्टेट ऑफ नेचर में जो हमें बताते हैं was not just as miserable and pessimistic as Hobbes, but it is also like to establish that the state of nature is in the stock of the trade of all the contract theories of the state. So it is also conceived that as a state that was prior establishment of political society. अब हम देखते हैं कि लॉक कंसिडर करते हैं जो मैन होता है वो रैशनल है, सोशल क्रीचर है, और वो केपेबल है आइडेंटिफाई करने में, तो वो रहता है एक मॉरल ऑर्डर में, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं है और वो कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव भी नहीं है. अब जो लॉकिन का स्टेट ऑफ नेचर है वो एक्चुअली फार फ्रॉम बीइंग वॉर है, क्योंकि ऑल स्टेट ऑफ नेचर इज द पीस, गुड विल, म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ और प्रिजर्वेशन के साथ होता है. अब ये सिग्निफाई करता है एक प्री पॉलिटिकल कंडीशन रादर देन द प्री सोशल कंडीशन. यहाँ पे जो है कि मैन इंडल्ज नहीं करते कॉन्स्टेंट वॉरफेयर में जो पीस और रीजन के लिए, तो इन्हें ओवरकम करना है, पर जो स्टेट ऑफ नेचर है वो गवर्न होता है बाय द लॉ ऑफ नेचर. अब ये लॉ है वो बेसिकली ऑब्लाइज करता है कि एवरी बार उनकी जो रीजनिंग है, जो यहाँ पे लॉ है वो एक्चुअली सिखाता है सारे माइंड का इनको कि हु विल बट कंसल्टेड, दैट मीन्स दैट they are being all equal and independent. So no one ought to harm one another in his life, his liberty or possession for men, being all the workmanship of one almighty and infinitely the wise maker. So we can see over here that all the servants of sovereign master were also sent into the world by his order,
and about his businesses, and they are his property whose workmanship they are made and made to last during his, not to the one's own pleasure. अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ का जो स्टेट ऑफ नेचर है कि मेन को सब इक्वल राइट्स दी गई है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उन्हें भी एक टुगेदर राइट टू प्रॉपर्टी है। अभी जो राइट्स है वो सारी अनचैलेंजेबल है और इनवायलेबल है बिकॉज वो डिराइव होती है एक लॉ ऑफ नेचर में जो उन्हें गॉड के रीजन से दी गई है। अब एवरीवन के सबके पास एक रैश रीजन है, नॉट ओनली जस्ट टू अपने आप को खुद को प्रिजर्व करना, बट टू प्रिजर्व द होल मैनकाइंड as well as own preparation does not come in conflict with this. And he also says that the men are free and equal and there is no other thing that is commonly acknowledged or superior whose orders they oblige to obey. So everyone over here is judged on one's own actions, and but over there but though we can also say that the natural condition, that is the state of liberty, is not just a state of license. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता खुद को और डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ एनी अदर मैन, बिकॉज यहाँ पे जो है कि कोई कॉमन जज नहीं करता, पनिश नहीं करता जो वायलेशन होता है नेचुरल लॉ में, स्टेट ऑफ नेचर में, और एवरी जो इंडिविजुअल होते हैं वो खुद के जज होते हैं और उनके पास खुद पावर होती है कि वो पनिश कर सके जो वायलेटर्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर है। अब यहाँ पे विलियम ने कहा है, अपनी ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स ने कंपोज करी कि जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉकियन स्टेट ऑफ नेचर का, उनके 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनमें एक्चुअली लैक कर रहे हैं। पहला तो ये that if all the men were basically guided by pure reason, they would all be at the same law. But men are biased with their own interest and mistake. Their own interests are basically general rule of law. And second, we can say over here that there is no second party to judge who has no personal state in dispute. And third, the state of the nature that the injured party is always strong enough to execute the law. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी लाइक असेस दैट इन लॉकियन जो स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे काफी सारी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, इनकन्वीनियंस होते हैं, जिसमें कंक्लूडेड होते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर है, while it is not a state of war because it is also not a tranquil condition, तो वो बीच में होती है, it can be soon superseded by that. और जो कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटीज होती है वो बाउंड होती है एक अकाउंट ऑफ सेल्फिश टेंडेंसी में जो ह्यूमन नेचर के होती है, और जो स्टेट ऑफ नेचर होता है वो काफी ज्यादा डेंजर में होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू स्टेट और वॉर। अब यहाँ पे देखते हैं जो सारे हैं वो एक्चुअली जज करते हैं अपने उनके इसमें, और उनके पास अपनी खुद की सोल अथॉरिटी होती है कि वो पनिश कर सके पीस को, दैट इज बाउंड टू बी ऑल्सो इंडेंजर्ड। अब देखते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी या फिर कोई स्टेट या फिर कोई एब्सेंस रहता है जो नहीं रूल गवर्न करता है, तो द स्टेट ऑफ नेचर इज ऑल्सो लाइक dissolute the condition as it is for horse instead of a condition of war of all against. अब जो state of nature है जो moral condition में है with a natural law that basically commands peace and sociability, determining that no one actually should harm another person in their life of liberty and possession. And we can talk about that कि इस state of nature में जो law का है is also moral state, और उसमें जो नेचुरल लॉज है एक्चुअली डिक्टेट करते हैं पीस प्रिजर्वेशन में, और जो लॉक इनिशियली स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब करते हैं कंडीशंस में जो उनके जस्ट वॉर है और जो एक्चुअली अकर करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो नेचुरल राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के लिए और उनके राइट्स होते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बन जाते हैं जो जस्ट वॉर के अगेंस्ट ऑफेंडर। अब जो लॉक सजेस्ट करता है जो स्टेट ऑफ वॉर है वो एक्चुअली स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी और डिस्ट्रेस होती है, सिमिलर जो ऑप्शन की हम क्या कहते हैं टीचिंग्स में हम पढ़ते हैं। अब डिस्पाइट जितनी भी हमें जस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम रीजन एंड द इंडिविजुअल राइट्स मिलती है, द स्टेट ऑफ नेचर हमेशा मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को, फोर्स और वायलेंस। अब हम आते हैं एक नेचुरल फाउंडेशन ऑफ रीजन। अब जो लॉक आर्ग्यू करते हैं कि गॉड लोगों को एक कैपेसिटी दी है एक रीजन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कि उन्हें एक सर्च ऑफ ट्रूथ करना है। अब जो गॉड के क्रीचर्स हैं पता है वी शुड एक्चुअली मस्ट प्रिजर्व आवरसेल्फ, so to help us the God created us with a natural aversion to misery and a desire for happiness, so we avoid things that cause us pain and seek out pleasure interests instead of that. So we can also reason that since we all are like equally God's children, God must want to obviously God want everyone to be happy, and if one person makes another unhappy by causing him pain, that person has excluded God wills.
सो देयरफॉर वी कैन सी ओवर हियर दैट कि हर एक इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो प्रिजर्व कर सके अदर इंसान को और वो खुद को भी प्रिजर्व कर पाए। अब इसको रिकग्नाइज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स की, जो ह्यूमन काइंड में एक्चुअली लीड करती है टॉलरेशन के लिए। अब ये जो नोशन है वो फॉर्म करता है बेसिस ऑफ लॉ की जो बिलीफ है सेपरेशन ऑफ चर्च स्टेट है। एंड इफ वी मस्ट आल्सो लाइक कम टू डिस्कवर द ट्रुथ थ्रू रीजन, एंड no one man is actually naturally better than he able to discover the truth of any other. So for this reason we can see that political leaders don't have the right to impose a belief on people, because everything we can understand comes through our own experience and is interpreted by our own reasoning. So no outside force can make us understand something in the conflict with our own ideas. Now let's talk about our natural rights. So the notion of the natural right is very important in the Lockean political philosophy, because Locke ने state करा है कि जो men है वो अपने state में of nature में वो possess करते हैं some natural right, right to life, liberty और property. अब ये जो natural rights है उसने derive करी है natural law में से, जो actually limited है, और जो freedom है man की और जो liberty of acting है वो actually according to his will है, जो grounded है एक reasoning पे, and it is able to like instruct him in the basis of law that he is able to govern himself and make him know that how far he left to this freedom of his own will. अब जब देखते हैं हम जो end of the law है, it is basically to abolish or restrain to the preserve, is basically to enlarge the freedom for all the states in order to be created as being. So we can see over here where there is no law, there is no freedom. अब लॉक ने डिस्क्राइब कर राइट टू प्रॉपर्टी है वो कनेक्टेड है राइट टू लाइफ है और लिबर्टी से भी, और इसके एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस है। अब हम देखते हैं लॉक को जो ने कंक्लूड करा है कि जो नेचुरल राइट्स हैं उसको हम राइट टू प्रॉपर्टी के साथ समझते हैं, और जो लाइफ और लिबर्टी होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टी से, और मैन क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी, वो मिक्स करते हैं लेबर्स को उनके ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर्स के साथ। अब बिगनिंग में ये सारे कॉमन थे, लेकिन अब जो कॉमन ओनरशिप जो एक्चुअली सफिशिएंट नहीं रही है मैन को प्रोवाइड करने में, जो इनके मीन्स ऑफ लाइफ है, तो उन्हें सेटिस्फाई करा है अपने खुद के नीड्स के लिए, और जो मैन है उन्हें एक्चुअली मिक्स करा है उनके लेबर में रिसोर्सेज के थ्रू, और उन्हें प्रोवाइड करा है कि बाय नेचर बेसिकली इनेबल करता है कि वो यूज कर सके और बहुत एफिशिएंटली करते हैं और प्रॉफिटेबल भी होता है। अब जो लॉक ने जो डिफाइन करा है जो स्टेट ऑफ नेचर में, उसमें जो इंडिविजुअल्स है वो बहुत कॉन्शियस है इन नेचुरल राइट्स में, और ये एक्चुअली सब्जेक्ट है रीजन के लिए। और जो यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर है उसने डिस्टिंग्विश करा है जो सिविल सोसाइटी है बाय द एब्सेंस ऑफ इट्स ओन कॉमन ऑर्गन बाय द इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ लॉ। यहाँ पे हम देखते हैं जो स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल को इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूटर ऑफ लॉ बनाया गया बाय द लॉ ऑफ नेचर, और जो वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन हो जिससे वगैरह वो केओस भी लीड कर सकते, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी हो सकती है लाइफ और प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत नेसेसरी है कि हम रिप्लेस कर सके जो स्टेट ऑफ नेचर है एक सिविल सोसाइटी में, जिसमें हम एक एक्चुअली लॉ जो है सब एक्सेप्ट करें, और वो अप्लाई होता है इम्पार्शियल अथॉरिटेटिव जज को, जिसमें डिसीजन लिया गया कि इन्फोर्स कर सके बाय द स्टेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो लॉकियन स्टेट है उन्हें शेप करा है कि वो सब किस में आएंगे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आएंगे इन द स्टेट ऑफ नेचर। अब हम आते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एक फाउंडेशन है पॉलिटिकल फिलोसफी का, तो उन्हें समराइज करा है कि हर मैन कैसे रिलेट करता है गॉड और बाकी सब इंसान से। अब जो लॉक उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जो मैन ओरिजिनली क्या एग्जिस्ट करता है स्टेट ऑफ नेचर में, उस वजह से ये एक्चुअली रिक्वायर है कि आंसर नॉट ओनली गिवन टू द लॉज ऑफ नेचर, तो उससे अपने स्टेट ऑफ नेचर में मैन आर बेसिकली फ्री टू डू वट एवर दे प्लीज। सो अब वो अपने प्रिजर्व करते हैं खुद का पेस और वो मेंटेन करते हैं मैनकाइंड इन जनरल। अब हम देखते हैं कि उनके पास राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, और ये फॉलो करते हैं कि उनके पास राइट है वो चीज़ें करने के लिए कि जिससे वो हेल्प करेगा उनको सर्वाइव करने में, और वो उससे खुश हो सकते हैं। जो गॉड ने हम सबको प्रोवाइड कर रखा है सब मटेरियल्स, और हमें परस्यू करना है सारे एंड्स, और इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एक्चुअली यूजलेस हैं, बट अंटिल द मैन आर बेसिकली एबल टू अप्लाई देयर ओन एफर्ट्स टू गेट देम। अब लॉक ने रेकमेंड करा था कि जितने भी सारे मैन हैं खुद की बॉडीज हैं उनका जो कम्प्लीटली है, और जो एनी प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल लेबर होता है वो भी उनको बिलोंग करता है।
अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली वी कैन सी दैट जब एक मैन आता है, एक्चुअली वर्क करता है कुछ गुड और मटेरियल के लिए, तो वो एक्चुअली वो उसका ओनर बन जाता है जो गुड और मटेरियल होता है। अब जो मैन जो फार्म में काम करता है वो एक्चुअली खुद का फूड प्रोड्यूस करता है, तो वो खुद ओन करेगा वो लैंड, और जो फूड होता है वो उसका एक्चुअली लेबर क्रिएट करता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिकॉज गॉड वांट्स एक्चुअली हिज चिल्ड्रन टू बी हैप्पी, and no man can take his possession or something if he actually harms another in doing so. So we can see over here he cannot take possession of more than that he can use, for example, because he would then be wasting materials and he might not otherwise be used to another person. So regretfully the world is actually aggrieved to by the immoral men who actually violate these natural laws. Now by coming together to the political and social compact of a community, they can also like create and enforce laws, and men guarantee better protection of their property and other liberties. Now let's come to the social contract. Now John Locke also said that men in the state of nature entered into proper contract due to like some troubles because of the absence of common law making, law enforcing and law interpreting agency that was capable of protecting their natural rights. अब हम देखते हैं जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो एक सिविल सोसाइटी में बाय कॉमन कंसेंट है लोगों के, और वो ट्रांसफर करती है जो राइट होती है पनिशिंग ऑफ द वायलेटर्स है of natural laws to be to independent and impartial authority. अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉक है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट उन्हें दिया है तो ईच सबको, तो वो सरेंडर करते हैं इंडिविजुअल की उनकी पर्सनल राइट होती है ताकि वो फुलफिल कर सके जो कमांड्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर है। अब इस रिटर्न में वो गारंटी करता है जो उनके राइट्स एज अ नेचर जो उन्हें लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी में वो मेंटेन करते हैं। अब जो लॉक है उनके एक्चुअली 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में उन्हें बहुत क्लियरली मेंशन करा है जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि हर एक इंडिविजुअल अपने एक साथ वो एक्चुअली यूनाइट करेगा और कॉन्स्टिट्यूट करेगा कम्युनिटी पे, और जो एंड है विच कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली मेड टू फॉर द प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी in which in the broader sense it's mean that the life and liberty and the estate is against the dangers both from within and without the community. अब जो लॉकियन का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि हर एक इंडिविजुअल अग्री करता है कि वो गिव अप कर गए अपनी सारी नेचुरल राइट्स में, but the one who is actually trying to interpret and execute the law of nature is actually restoring their own grievances. सो लॉक ने फर्दर इलेबोरेट करा एक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट को जिनके 3 फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव। लेजिस्लेटिव पता है कि वो सुप्रीम पावर होती है और ये एग्जीक्यूटिव भी सबऑर्डिनेट होता है, और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है सबऑर्डिनेट होती है लेजिस्लेटिव में और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, और जो फेडरेटिव पावर होती है वो एसोसिएट होती है जो फॉरेन अफेयर्स से है, और जो लेजिस्लेटिव पावर हम देखते हैं सुप्रीम है और सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये सब एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारे कॉमन गुड के लिए एग्जिस्ट करते हैं जो सेफ गार्ड करता है हमारा फ्रीडम और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं जो लेजिस्लेटिव है वो एक्चुअली रूल नहीं कर सकता, आर्बिट्री रूल नहीं कर सकता, और वो ओनली बाय ड्यूलिंग लाइक वो प्रोपोगेट कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है लॉज। अब जो लॉग ने मेंशन करा है यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंसेंट होंगे, एक तो एक्सप्रेस दैट इज अ डायरेक्ट और द टैसिट कंसेंट। एक्सप्रेस करना बेसिकली क्लियर कमिटमेंट देनी है कि हम कॉमनवेल्थ जब फाउंड हुआ था, और अकॉर्डिंग टू लॉक जो है वो ट्रू स्टेट मस्ट बी बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है जिसमें मैन रिकॉग्नाइज करेंगे रूल ऑफ लॉ, और यहाँ पे जो लॉ कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे देयर कैन बी नो पॉलिटिकल लिबर्टी इफ अ मैन इज एक्चुअली subject to his inconstant uncertainty, unknown and arbitrary will of another man. So government must also like establish with the standing laws, and he should actually promulgate, and that should be actually known to the people and not by the extemporary rulings. अब हम आते हैं क्या रिलीजियस थियोरीज ऑफ टॉलरेशन है जो लॉक ने डेवलप करी है, क्लासिक रीजनिंग है जो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए इसकी राइटिंग्स हम देखते जो लेटर्स दैट इज कंसर्निंग टू द टॉलरेशन। इसमें रेपरकशंस हुए हैं जो यूरोपियन वॉर्स का ऑफ रिलीजन है। यहाँ पे 3 मेन आर्ग्यूमेंट दिए, तो अर्थली जजेस जो स्टेट की हम बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग जनरली जो कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम टू इवैल्यूएट द ट्रूथ, बेसिकली क्लेम्स द कंपीटिंग रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं इवन इफ दे कुड देन दे एनफोर्सिंग अ सिंगल ट्रू रिलीजन वुड हैव बीन अ डिजायर्ड इफेक्ट बिकॉज बिलीफ कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय वायलेंस। Third, forcing any religious uniformity would also lead to a social disorder than allowing diversity. अब देखते हैं यहाँ पे हम कि लॉ का एक डिस्टिंक्टिव पोजीशन है जो डेवलप करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी में,
तो उनने यहाँ पे ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये लिखा है कि जो बैकग्राउंड है नेचुरल लॉ का और जो नेचुरल राइट्स है वो है और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थ्योरी है। अब जो आउटस्टैंडिंग वर्क्स हम दिखते हैं जो पब्लिश हुए थे 1690 में वो वैलिडेट करते हैं जो सुपर्ब रेवोल्यूशन हुआ है 1688 में, और जो जो स्टेट्स ऑफ नेचर, वॉर और प्रॉपर्टी है बेसिकली ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है लॉकियन थ्योरी के, और जो पॉलिटिकल पावर जो लेजिटिमेट सिविल गवर्नमेंट है। और जो रोमन कैथोलिक जेम्स है उन्हें कैसे थ्रोन से हटाया था, प्रोटेस्टेंट विलियम वन पे थ्रोन पे बैठे थे, जो प्रोटेस्टेंट के विलियम बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट के उसमें थे। और जो लोग यहाँ पे अपना कंसेंट देते हैं कि वो लीव करेंगे स्टेट ऑफ नेचर में, और वो एक्चुअली फुल इनकन्वीनियंस होते हैं और वापस वो एंटर भी कर सकते हैं सिविल स्टेट में। अब जहाँ पे सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश करते हैं गवर्नमेंट को इन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ मेजोरिटी के थ्रू, और जहाँ पे पावर्स डिप्राइव होती है। अब उसके बाद जो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ लेजिस्लेचर वो बेसिकली सेट करती है लिमिट जिससे इंडिविजुअल एक्चुअली एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ वन बॉडी। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है हमारा जॉन लॉक के फिलोसोफर के बारे में, कि जॉन लॉक है जो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वॉर है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम अ ह्यूमन नेचर और जो नेचर ऑफ लॉ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देयर इज एन एब्सोल्यूट आर्बिट्ररी पावर दैट बेसिकली ट्राइज टू impinge on the property of people, and the people also have a right to resist on them by entering a proper condition that is similar to the state of nature। अब यहाँ पे state of anxiety है, fear और inconvenience है। अब देखते हैं आफ्टर रेबिलियन हम देखते हैं कि आर्बिट्री स्टेट है तो लोगों को जो है वो राइट है वो रीस्टैब्लिश कर सके एक नई गवर्नमेंट को और एक न्यू लेजिस्लेटिव पावर को, जो वो क्रिएट करते हैं न्यू रूल्स के लिए, और वो फॉर्ज करते हैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो उन्हें गवर्न करता है। अब जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट होता है हम देखते हो कंसेंट पे बेस्ड सोसाइटी में ये फुलफिल करता है जितने भी इनके बेसिक पर्पस होते हैं सिविल एसोसिएशन में, रिस्पेक्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोसाइटी।